Could you please join our hands together and welcome Brother Raju. Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord, Kalesia. Praise the Lord. You know, it's so good to be in the presence of God and to enjoy the presence of God. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहना और उसको उपस्थिति को महसूस करना. You know, as I was sitting there and listening to the testimony, my heart was really wobbling. You know, what God can do in our life and through our lives. और मैं जब वहां पे बैठ के जब मैं ये गवाहियों को सुन रहा था, मेरा हाथ एकदम प्रसन्नित हुआ क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर क्या क्या हमारे जीवन में कर सकता है. You know, it's not only in our life, but He wants to do something through our lives also. केवल परमेश्वर हमारे जीवन में ही, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता You know, है. many a times we limit ourselves. और कई बार हम अपने आप को सीमित रखते हैं. Many a times we feel that I am not able to do, I can't do it actually. और कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं कर सकता एक्चुअली देखा जाए But तो. listen to me. लेकिन ध्यान से सुनिए. You know what you think about yourself, you are not that. But what God think about yourself, you are actually, you and I, we are that. जो आप अपने बारे में सोचते हैं आप वो नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं आप वो हैं. Hallelujah. Hallelujah. You know, so believe God for great things. और आप परमेश्वर में विश्वास करो उस महान कार्य के लिए आपके जीवन में. You know, believe God to do great things through your life, in your family, in your ministry, in the place where you are in the church. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना कि आप आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करने जा And रहा I है. believe it very strongly. और मैं बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को मैं विश्वास करता You हूँ. know, church, let me tell you, I believe it's the coming of Jesus is very near now. और कलीसिया में आपसे बोलना चाहता कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही समीप So है. you and I, we need to get ready for that day. और आपको और हम मुझे तैयार होना उस दिन के लिए. And it doesn't happen only from coming Sunday to the church actually. और केवल ये बात केवल हर एक इतवार को आने से नहीं होता. You know, most of us, we just think only, okay, Sunday we come, we worship, we go away from here. Praise God for all this Sunday morning. और कई बार हम लोग सोचते हैं कि इतवार को आते फिर यहाँ से चले जाते हैं, पर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि ना ऐसे इतवार भी आते हैं. Church, कलीसिया, our God, my God and your God is not a God of Sundays only. और मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरा और आपका परमेश्वर केवल इतवार का परमेश्वर नहीं है. He's not a God that we carry the Bible only on Sunday and come and know, and only Sunday to Sunday we have it in our hands. और केवल ये पवित्र शास्त्र को मैं पकड़ता हूँ, केवल मैं इतवार को आता हूँ, मेरा वो परमेश्वर वैसा नहीं है. Your God and my God is not of Sunday. और मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर केवल इतवार का परमेश्वर नहीं. He is the God of from Sunday to Saturday. और मैं बोलना चाहता हूँ कि रविवार से शनिवार तक का मेरा परमेश्वर As I है. have said, we don't serve a very small God. और जैसे मैंने कहा कि हम उस छोटे से कोई परमेश्वर की हम सेवा नहीं We have करते. a big God. हमारा परमेश्वर महान है, बड़ा And है. you belong to a very big God. और हम सभी लोग उस महान परमेश्वर के साथ के And लोग I हैं. belong to a very big God. और मैं भी उस महान परमेश्वर का हूँ. You know, this morning there is something which God has been put into my heart I want to share with you. और ये सुबह के बाद परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ बातों को रखा जो आपके सामने में लेके आना चाहता You know, हूँ. it's about worship. और ये है आराधना के बारे You know, में. most of the time और कई बार when we talk about worship, और कई बार जब हम आराधना के बारे में बात करते हैं, we only talk about with the instrument, the people standing over here, they are leading us. We only think that is the worship actually. और कई बार हम ये सोचते हैं कि जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, आराधक है, जो संगीत बजाते हैं या ये सब हो रहा है, वही आराधना होता है. But worship is more than that. लेकिन जो आराधना इससे भी बढ़कर है, It's more than that. इससे भी बढ़कर है. You know, in the Bible, when you look, when Abraham went to sacrifice his son Isaac, जब परमेश्वर के आगे वचन को देखेंगे कि जब अब्राहम जो अपने पुत्र जो इसहाक को जब वो बलि देने के लिए गया, you know, he told to his people, "Let me go up and worship the Lord." और उन्होंने अपने लोगों से, सेवकों से कहा, अब्राहम ने कहा कि मुझे उस पर्वत में जाने दो प्रभु की आराधना करने के He लिए. didn't have guitar, he didn't have piano, he didn't have anything, he didn't have any drums. He took over there and he started worshiping God. और अब्राहम के पास कोई गिटार, कोई ड्रम्स, कोई कीबोर्ड कुछ नहीं था. वो जाके वहां पे आराधना करने के लिए, But he went to worship God over there. लेकिन वो वहां पे गया प्रभु की आराधना करने के लिए. In our mind, मेरा जो मन है, हमारा जो मन है, is when we talk about worship, it's only about sometimes about instruments what we have. Sometimes we sing fast song, sometimes we sing slow song. We think that is actually worship. हमारे मन में एक बात है कि जब भी कोई गीत अगर बहुत तेजी से चल रहा है, कोई गीत बहुत धीमा है, हम ये सोचते हैं कि आराधना यही होता होगा.
But it's much more than that actually. लेकिन church. मैं आपसे बताना चाहता हूँ इससे भी बढ़कर है It's वो, much more than that. उससे भी बढ़कर है वो। So this morning I want to bring to you the 5 ways of how to worship God. और मैं आप लोगों के बीच में एक 5 चीजों को रखना चाहता हूं कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते You हैं। know, there are many other things, but this is what the Lord put into my heart from last 2 weeks, and I've been meditating on it and I've been thinking about it. So this is what God has put into my heart. और भी बातें हैं, लेकिन ये जो 5 बातें हैं जो परमेश्वर ने पिछले 2 हफ्तों में मेरे साथ में से बात के मैं आपके सामने रखना You know, चाहता हूं। church, today we all are so much health conscious. और आप देखेंगे कलीसिया में हम लोग सब अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। Yes or no? We should be actually. हम सोचना भी चाहिए, But sometimes we become over health conscious कई बार हम लोग कुछ अधिक हम स्वास्थ्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, and we want to do things which actually doesn't match the word of God. और कई बार हम लोग ऐसा काम कर देते हैं कि जो प्रभु के जो वचन के अनुसार नहीं होता। And we wanted to take care of our health. The one of the reason is that I need to live a long life. Praise God for that. कई बार हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में इतना सोचते हैं क्योंकि इसलिए सोचते हैं कि हम लंबा या जीना चाहते हैं। Praise God for that. धन्य हो प्रभु के लिए And इसके my लिए। prayer for each and every one of you that God will give a good, healthy, long life for each and every one of और ये us. मेरी प्रार्थना आप सभी के लिए ये है कि परमेश्वर आपको एक स्वस्थ और लंबी उम्र दे। But लेकिन more than my health and your health, मेरा स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य से भी बढ़कर God is interested into my spirit actually. लेकिन जो परमेश्वर जो हो मेरी आत्मा में वो दिलचस्पी रखता है। How much more we take off of the physical body, are we taking care of the spirit which is there in you and me? क्या हम जितना हम अपना शरीर के बारे में सोचते हैं, क्या हम उतने उससे अधिक क्या हमारी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं? The Bible says that our body is made up of mud. From the mud we have made, and we are going to go back in the mud. और लिखा है कि हम लोग जो है वो मड से बनाए गए, मिट्टी से बनाए गए हैं और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। But what about the spirit, your spirit and my spirit, which is going to have an eternal life? और क्या मतलब होगा अगर आपकी आत्मा मेरी आत्मा जो कहता है पवित्र शास्त्र है कि अनंत काल के लिए है। Please don't misunderstand what I'm saying. आप इसको मतलब इसको मिसअंडरस्टैंड ना I'm कीजिए। not saying that we should not take care of our physical body. Yes, we should. मैं ये नहीं बोल रहा कि हम अपने शरीर की हमें देखरेख नहीं करना चाहिए। But as we take care of that, how much more we should take care of our spirit, which is going to be live eternally in heaven with God. अब सोचिए कि अगर हमारा अपना स्वास्थ्य हम लोग इतना देखते हैं कि हमारी आत्मा जो अनंत काल के लिए है उसको कितना देखभाल करना पड़ेगा। I also do some kind of a dieting, not much, but little bit. और मैं भी थोड़ा बहुत डाइटिंग करता हूँ, छोटा मोटा, Sometimes, कभी yeah, 35%, not more than that. और 35% मैं बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। You know, sometimes I try to do 50%. और मैं कोशिश करता हूँ कि 50% कर लूँ It मैं, doesn't happen with me actually. लेकिन ये होता नहीं है मुझसे। The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, one who shall worship me in spirit and in truth. और यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई से भरकर करे। Now God is a spirit. और परमेश्वर है वो एक आत्मा है, And God needs you and me to worship Him in spirit and in truth. और परमेश्वर चाहते आप और हम प्रभु की परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई से भरकर करें, Because God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। So He needs you and I to worship Him in spirit and in truth actually. और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा से भरकर और सच्चाई में होके करें। You know, one of the way that you and we need to worship God is to serve each other. और एक प्रकार का जो आराधना जो है परमेश्वर का वो है एक दूसरों की सेवा करके। Church, very, very important. कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। Listen to me, just standing over here, playing the drums, playing the guitar, playing all that is good, very good. और यहाँ पे खड़े होके गिटार बजाना, ड्रम्स बजाना, कीबोर्ड बजाना अच्छी बात है। Serving is an act of humility. और एक दूसरों को सेवा करना जो अपने आप को नम्र करने के बराबर है। Galatians chapter 5 verse 13. या गलतियों की किताब का 5वां अध्याय 13वां वचन, गलतियों के 5वां अध्याय 13वां वचन। He said, for brethren, all you have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। You know, when we love somebody,
जब हम किसी से प्रेम करते हैं we serve somebody. और हम उनकी सेवा करते हैं, You know, in a house actually, अगर देखा जाए तो हमारे घरों में, the ministry actually of serving starts in a house और actually. जो सेविकाई जो है हमारे जो है शुरू होता है हमारे घरों से। It's easy to go out and serve somebody when like no, when somebody is seeing us. और ये बहुत आसान है कि हम घर से बाहर निकलकर किसी की सेवा करना शुरू करते हैं जब कोई हमें देखता है। But actually the servanthood or the serving part starts from our own house actually. लेकिन जो एक दास का जो काम है वो शुरुआत होता है अपने घर में। It said love, but by love serve one another. और लिखा है कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। You know, in the house, घर में you have your wife, you have your husband, you have your children. आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं वहां। You know, when you love them, जब आप उनसे प्रेम करते हैं you serve them. और उनकी सेवा करते हैं आप, You love them, जब हम उनसे प्रेम करते हैं you serve them. आप उनकी सेवा करते You हैं। know, that attitude when you come back to the church, when it from the house, it come back to the church also. और ये इस बात ये दर्शाता है कि जब घर से जब कलीसिया आते हैं इस बातों को वो दर्शाता भी है। Church, you and I, we are not here to please anybody. और कलीसिया में ये बताना चाहता हूँ आप और हम लोग किसी को खुश करने के लिए We नहीं don't है। want any name, we don't want any fame. Thank God for the talent God has given to you and me. हमें किसी की नाम की हमारे लिए नाम या प्रसिद्धि की कोई जरूरत नहीं है। हम प्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Love to serve others. और प्रेम से दूसरों का सेवा करो। When Jesus was baptized, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ Father said it like this. और परमेश्वर पिता ने ऐसे कहा, This is my beloved son in whom I am okay. और ऐसा कहा क्या कि ये मेरा इकलौता पुत्र जिससे मैं थोड़ा खुश हूं। Huh? Did Father said like this? क्या पिता ने ऐसे कहा? This is my beloved son in whom I am okay. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं थोड़ा ही खुश हूं। He क्या said, ऐसा कहा? This is my beloved son in whom I am well pleased. और ऐसा लिखा है कि ये मेरा इकलौता पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। Church, कलीसिया, you and I, we are here to please God. और आप और हम यहाँ पे प्रभु को प्लीज करने के लिए आए हैं। You and I, we are here. God has kept here to please Him. और यहाँ पे परमेश्वर हमें इसीलिए रखा था कि हम प्रभु को खुश कर सकें। Hallelujah. Not to please anybody. Not to please anybody. किसी और को खुश करने के लिए But to नहीं, please God. लेकिन केवल परमेश्वर को। So worshiping God, serving is one of the act of worshiping God. और प्रभु की जो आराधना करना वो एक दूसरों का सेवा करना भी है। Let me just put some more things about the worship, about serving others. और मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक दूसरों के सेवा के बारे में और बातें। 1 Peter chapter 4 verse 8 to 11. पहला पत्रस का 14 अध्याय उसका 11वां अध्याय। Yeah. और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। You know, we need to serve one another हमको एक दूसरे की सेवा करना है because Jesus served. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी सेवा किया है। Jesus served you and me. और यीशु मसीह ने आपकी और मेरी सेवा किया He है still actually, और अभी भी कर रहे हैं। you know, by giving us so many things actually. और इतने सारे चीजों को देने के बाद भी वो हमारी सेवा It's कर a रहे हैं। kind of a service of God towards you and me actually. और ये परमेश्वर की एक सेवा जो आपके और मेरे जीवन में दिखाई He देता है doesn't stop serving you and me. और वो कभी रोकते नहीं अपने आप को हमारी सेवा करने से। So very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। We need to be a servant among our people. और हमें एक सेवक बनना है हमारे लोगों के बीच में। The Bible says the first shall be the last shall be the first. लिखा है कि जो पहला होगा वो एक अंतिम होगा, जो अंतिम है जो पहला हो जाएगा। Church, कलीसिया, we need to carry this attitude into our life of serving each other. और ये बातों को हमें रखना हमारे जीवन में कि एक दूसरे की सेवा करने का। You know, the Bible says, and above all things have fervent love among yourself, for love shall cover all multitude of sin. और परमेश्वर का वचन कहता है अब सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। We are called to be the reflector of the Lord Jesus Christ. और हम ये लोग हैं कि जो परमेश्वर के
एक दर्पण जैसे, जो वैसे जैसे प्रभु है वैसे हम भी दिखते हैं। You know, so we need to have that humble heart. We need to have that heart to serve each other. और हमारे पास भी वो नम्र दिल होना चाहिए, वो नम्र दिल किसी और की सेवा करने You know, के लिए। sometimes we are a people like, you know, we want to serve only, I want to serve only Shibu. Apart from Shibu, I am not going to serve anybody. और That's my mind sometimes. और कभी कभी हमारा मन ऐसा करता है कि मैं भाई शिबू का ही सेवा करूंगा, या मैं किसी इसी व्यक्ति का करूंगा और मैं किसी का नहीं करूंगा। The only reason why we can love others, you know, केवल- because God, Jesus loved you and me. और एक ही कारण है जो हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने हमारी सेवा की। Hallelujah. He says that love shall cover the multitude of sin. और लिखा है कि जो प्रेम है जो अनेक पापों को वो ढांप देता है। When somebody sins, अगर कोई पाप करता है, most of the time, और कई बार we become a Times of India or we become a DNA. और कई बार हम लोग अखबार बन जाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया या डीएनए बन जाते हैं। We propaganda about that person to everybody, what he or she has done it. और उस जिस व्यक्ति ने पाप किया, वो या पुरुष हो स्त्री हो, हम सबके पास जाके हम बोलना शुरू कर But देते हैं। if you and I, if we love somebody, अगर आप और हम लोग किसी से प्रेम करते हैं, if you and I, we love somebody, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, he said love shall cover the multitude of sin. लिखा है कि जो पाप है, जो हमारा जो प्रेम है, पापों को ढांप देता है। Anybody over you can say, I have never sinned into my life. क्या कोई बोल सकता है कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया मेरी जिंदगी में? We shall lay a hand on you if you say yes, I have not sinned. We shall lay a hand on you and cast the spirit of life from you. अगर आप में से कोई कहता है कि मैंने आज तक पाप नहीं किया, तो हमें आपके ऊपर हाथ रखना पड़ेगा और ये प्रार्थना करने पड़ेगा कि जो झूठ की आत्मा आपके अंदर से निकल जाए। We all have sinned. The Bible said we all have sinned and fallen short of God's glory. और पवित्र शास्त्र में लिखा, हम सभी लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उसकी महिमा से हम वंचित रहे। You know, when somebody sin and we know it, we should be very important, like, you know, we should not be DNA or Times of India, but in fact, we should show the love of God. और ऐसी बातों इसी समय में हम ऐसा नहीं बनना चाहिए अखबार जैसे कि हर बातों लोगों को जाके बता रहे हैं, लेकिन हमें उस अपने प्रेम से उसका जो भी पाप उसको ढांप के रखना है। It's not that the sins, they have not sinned actually. It is not that they have not sinned, they have sinned actually. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाप नहीं किया, लेकिन पाप किया है। But the focus we have to have for that person is to how do we love him deeply, because God, we being a sinner, he loved us very deeply actually. लेकिन हमारा जो देखना का जो नजरिया है वो ऐसा है कि क्योंकि वो व्यक्ति ने पाप किया इसलिए नहीं, क्योंकि जब मैं पापी था परमेश्वर ने मुझे माफ किया अपने प्रेम से, इसीलिए मैं दूसरों की सेवा करता I हूं। was not worthy of that. और मैं इसके लायक नहीं था, I was a sinner. और मैं पापी था। But because God's love came to me, God made me worthy. और क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पास आया और परमेश्वर ने मुझे लायक बनाया, And may God loved me the way I am. और परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया जैसे भी मैं था। Church, कलीसिया, we need to come to that place to serve people, और हमें भी उस स्थान में आना जहां पे लोगों की हम सेवा कर सकें। not to condemn people. यहाँ पे दोष लगाने के लिए We are नहीं, not here to condemn anybody. यहाँ पे हम किसी को दोष लगाने के लिए नहीं आए। You know, God, when you and I, when we sinned, God didn't condemn us. He just took a hand, He picked you up and He said, come, my son, come, my daughter, let's walk together. जब हमने और आपने जब पाप किया था, परमेश्वर ने हमारे पे दोष नहीं लगाया, लेकिन जिस गड्ढे में थे परमेश्वर ने अपने हाथ फैला के बोला, आ जाओ मेरा पुत्र और मेरी पुत्री, आ जाओ यहाँ पे। The serving starts in our house actually. और जो सेवा जो है हमारे घर से It शुरुआत starts होती है, from our house. हमारे घर से शुरुआत होती है। Husband serves the wife, wife serves the husband. जो पति है जो पत्नी की सेवा करती है, और पत्नी जो है पति की सेवा करती है। Hallelujah. Come on, every husband says, Amen. Amen. Husband serves the wife, wife serves the husband. पति जो है पत्नी की सेवा करते हैं और पत्नी जो है पति की It सेवा starts करती from our house. है, और ये हमारे घर से शुरुआत होती है। You know, it's very good, like, you know, to bring all kinds of gifts to our wife.
और अच्छी बात है कि हम बहुत सारे तोहफा अपने पत्नियों के लिए पत्नी के लिए लेके आते because हैं, wife is cooking for me, क्योंकि पत्नी मेरे लिए खाना बना रही है, wife is washing my utensils, और जो मेरे बर्तनों को साफ करती wife है, does everything. मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ करती It's है। very good to bring good gifts for the wife. और अच्छा है कि जो अच्छे अच्छे तोहफा हम लेके आते हैं अपनी But I पत्नी think के wife लिए। will be more happy when you serve her also. और लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ पत्नी तभी खुश होगी जब हम उनकी सेवा करेंगे। All wives say amen. What is it, amen? Come on, all wives say amen. We need to serve each other. और हमें एक दूसरे की सेवा करना जरूरी है, That's an act of worship और actually. ये भी एक प्रकार का एक आराधना है। Verse 9 says it like this. और नव वचन में लिखा है, Use hospitality one to another without grudging. बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करे। You know, when we think about this word, hospitality, और जब एक दूसरे की सेवा के बारे हम जब कहते हैं, it's only about when somebody come to our house and we greet them and give them food actually. और तभी होता है कि जो कोई मेहमान हमारे घर पे आते हैं और उनको हम सेवा करते हैं, उनको खाना देते हैं। We most of the time this is what is into our mind actually. और कई बार हमारे मनों में यही बात बसा हुआ है, But it is much more than that, church. लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़कर है कलीसिया। Giving your ear to somebody is also a kind of what we call and hearing them and a kind of an hospitality to them. और किसी की बातों को सुनना भी, वो भी एक प्रकार का सेवा है। You know, just hearing them. केवल एक किसी की बातों को सुनना भी। Sometimes you're reading a book actually and all of a sudden you get a call and you say, no, this is not, I don't want to take this. But you attend that call, somebody can encourage over there. और आप शायद किताब पढ़ रहे होंगे और अचानक आपको एक कॉल आता है और फिर आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे कॉल नहीं उठाना, और शायद आप उठाते हैं, शायद उससे वजह से किसी को आप प्रोत्साहन देते हैं। You know, as I was talking about serving each other in the house. और जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे की सेवा करना घर में, You know, I personally believe it's very, very important. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। Ministry start in the house. और जो सेविका जो है हमारी जो घरों से शुरू It होती है, starts in our house. वो हमारे घरों से शुरू होती From है, a house it comes out actually. और क्योंकि ये हमारे घर से ही बाहर आती है ये And बातें, we call the church as a family. और क्योंकि हम कलीसिया को एक परिवार बोलते हैं, So it starts from here. और ये इसीलिए ये बात यहाँ से शुरू होती है, Serving each other. एक दूसरे की सेवा करना Everybody. सबके लिए, In spite of whatever caste we are, in spite of whatever color we are, in spite of whatever language we are, we need to serve each other. हालांकि कोई भी जात पात क्यों ना हो, कोई भी रंग रूप क्यों ना हो, कहीं से कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे की सेवा करना जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you a small story. मैं आपसे एक छोटी सी कहानी बोलना चाहता हूँ। The husband and wife, they were sleeping. और एक दिन एक दंपति सो रहे थे, All of a sudden, they got up in the morning, और अचानक वो सुबह उठ गए, and wife said to the husband, you know, I saw some dream. और पत्नी ने पति से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा। You know, in this dream I saw diamonds, I saw gold, I saw silver, and all these things I saw in a dream. और उन्होंने कहा कि मैंने डायमंड देखा, सोना देखा, चांदी देखा। And she went to the husband, no, I saw this. Can you tell me what is this? What is this? और फिर पत्नी ने कहा कि मैंने ये कुछ देखा, तो आप बता सकती है क्या है, ये क्या है? The husband said, तो पति ने कहा, good, very good. बोला बहुत अच्छा, Your बहुत अच्छा। birthday is coming, please wait for that. और कहा कि तुम्हारा जन्मदिन आ रहा, आप उसके लिए रुके रहना। Please, your birthday is coming, please wait for that. और तुम्हारा जन्मदिन आ रहा, उसके लिए रुके रहना। So the day came, और वो दिन आया, that wife's birthday was there. और जो पत्नी का जो है जन्मदिन आया, This husband, और ये जो पति है, he came to the wife और वो पत्नी के पास आए and gives a gift to the wife. और एक तोहफा पत्नी को दिया, And she takes the gift, और पत्नी ने उस तोहफा को लिया, she wraps it, the whole gift out. एंड जो पति जो उसने पूरे पति ने The wife opened the gift. और जो पत्नी ने हो उस तोहफा को पूरा खोला, And she opened the whole thing, और उसने पूरा तोहफा को खोल दिया फिर, and there was a book in that. और उसके अंदर एक किताब थी। You know what was written? आपको पता है उसके The अंदर क्या book लिखा? name was उस किताब का शीर्षक ये था, How to Interpret Your Dreams. और कि तुम अपने जो सपनों को सपने को जो है इंटरप्रेट कैसे करोगे। Wife was expecting something, but she got something else. और जो पत्नी को सोच रही थी कि कुछ मिलेगा, लेकिन इसको कुछ और ही मिला। Church, what I want to tell in this, और मैं कलीसिया में बोलना क्या चाहता हूँ, wife also has an expectation. She doesn't want your gold, she doesn't want your diamond. What she wants is you to serve him also sometimes. और पत्नियों को जो है कोई सोना या चांदी की जरूरत नहीं, केवल वो एक ही चाहते हैं कि पति उनका भी सेवा करें। You know, so
So we need to demonstrate this hospitality to others people. और इसीलिए हमें ये दर्शाना है कि एक दूसरों की सेवा करके I believe true hospitality is like getting ourselves into their shoes and making them comfortable. और मैं ये सोचता हूँ कि दूसरों की सेवा करने का मतलब है कि उनके उनके पास जाके वो जो चाहते हैं कि सोचते हैं उनकी वैसे ही सेवा करें. Hallelujah. 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 We should serve others. और हमें एक दूसरे की सेवा करना है. Let me go further. मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ. Jesus यीशु मसीह demonstrated his act towards serving people. यीशु मसीह ने ये दर्शाया दिखाया है कि कैसे सेवा करना चाहिए. You know, the crowd followed him. और जो भीड़ उनके पीछे हो गई थी They wanted Jesus to heal them. और वो चाहते थे कि यीशु मसीह उन सबको चंगाई दे He wanted Jesus to feed them. और ताकि वो चाहते कि यीशु मसीह उनको खाना खिलाए He wanted Jesus to take care of them. और वो चाहते थे कि यीशु मसीह उनकी देखभाल करें. And this is what Jesus did actually, if you go to see. अगर देखा जाए तो यीशु मसीह ने यही सब तो बातें की. And when he did all this thing, ये सब करने के बाद he demonstration his heart and serving to people actually. और यीशु मसीह ने ये बात को करके दिखाया कि सेवा क्या होती है. You know, our words of serving is not only should be from our mouth, it should be from our heart. और जो सेवा का जो मतलब है केवल बोलने से नहीं लेकिन हम करके दिखाने से होता है. Hallelujah. You know, I used to get, when I started coming to the church, और जब मैं कलीसिया आना शुरू किया था I think it's almost now 3.5, 4 years now, been coming over here, 4 years. और करीबन मैं 4 साल से इस कलीसिया में मैं आ रहा हूँ. You know, I used to see, you know, when I used to come some of the time early, I used to see pastor putting the chairs actually. और कई बार मैं जल्दी जब आता था मैंने देखा कि पासवान ये कुर्सियों को डालते थे. Frankly speaking, I used to get very upset. और देखा जाए तो सच बोलूं तो मैं बहुत ही मेरा मन निराश हो जाता था. I used to get really upset. और मैं काफी निराश हो जाता था. You know why? आपको पता है क्यों? Because we have 100 people, 120 people, 150 people, 180 people, and we are seeing our pastor putting the chairs. देखा जाए तो करीबन हम लोग 100 या 150 या 180 लोग हैं. हमें से कोई नहीं लेकिन पासवान इस कुर्सियों को डाल रहे You हैं. know, I used to really feel very upset actually. और इस बात से मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता था. And then I saw a few other people also putting. फिर मैंने देखा कि कुछ और भी लोग जुड़ जाते थे कुर्सियों डालने के लिए. You know, but what I want to say, मैं क्या बोलना चाहता हूँ you know, pastor setting an example for you and me. और पासवान जो आपके और मेरे सामने एक उदाहरण को खड़ा कर रहे हैं. If you and I, we don't set an example, अगर आप और हम लोग किसी बात को या उदाहरण एक रखते हैं किसी we के are not सामने serving God and we are not serving people. हम लोग केवल We are not serving God, we are not serving people. और हम किसी परमेश्वर या तो हम लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं. So it's very, very important that Jesus demonstrated his love towards people by serving people in different ways. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है कि सेवा करके कि हम कैसे कितने लोगों के जीवन में हम सेवा कर सकते हैं. Verse 10. और 10वां अध्याय को पढ़ेंगे. As every man has received the gift, even so minister the same to one another as good stewards to the manifold grace of God. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगे. God not gave the talent for you and me just to use for ourselves. परमेश्वर ने हमें केवल ऐसे टैलेंट नहीं दिया कि हम ऐसे इसका इस्तेमाल करें. Talents are good, ये टैलेंट तो अच्छी बात है but it's not only for ourselves, ये केवल हमारे लिए नहीं है but it's for to use for the others also. लेकिन ये इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों के लिए. But listen to me, church. लेकिन कलीसिया ध्यान से सुनिए. If we have the talent, अगर हमारे पास टैलेंट है it is not to show off or it's not only to stand on the stage and do something. और केवल ये दिखाने के लिए नहीं या तो केवल स्टेज में खड़े होने के लिए नहीं. Once upon a time, I also used to lead worship. और एक ऐसा समय था कि मैं भी वर्शिप लीड करना आराधना लीड करना चाहता When था. me and my wife, we got married in the year 1995, when we started going to a small church in Shivri in Mumbai. और हम लोग 1995 को मैं और मेरी पत्नी का शादी हुए और हम लोग एक कलीसिया जाते थे शिवड़ी में. And every morning, like no, before the church starts, 1 hour before I used to be there. We both used to be there. एंड कलीसिया शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले मैं और मेरी पत्नी वहां पे आते थे. You know, this is not something which I want to boast, okay?
You know, we used to have a service in a small school actually. और मैं इससे कुछ बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारी जो कलीसिया एक छोटी सी स्कूल में होती थी, It was the fourth class actually that, so we used to have the service over there. और ये चौथा क्लास था, और वहां पे उस कक्षा में हमारी सर्विस होती The थी, bench used to be very dirty. और जो बेंचेस होती थी बहुत ही गंदी होती थी। Then Sunday morning we used to go there, we used to clean the chairs, we used to the bench and the desks, we used to clean everything. और हर इतवार को हम लोग उस कुर्सियों को, उस बेंचेस को हम लोग साफ करते थे। You know, most of the time at that time I used to wear quite a lot of light clothes. Now I am wearing dark clothes. और उन दिनों में काफी मैं लाइट कपड़ा पहनता था, अभी मैं डार्क जो भारी कलर वो पहनता हूँ। So my shirts used to get dirty actually. और देखा जाता मेरी जो शर्ट है पूरा गंदा हो जाता था। You know, but after that लेकिन उसके बाद I used to lead the worship. और मैं वर्शिप आराधना लीड करता You था। know, there was little bit some darks and like, you know, some patches over there here and there. और देखा जाए तो कुछ ना कुछ दाग लगा रहता था मेरे शर्ट में। You know what I'm saying over here? मैं बोलना क्या चाहता हूँ, You know, people saw me in the front लोगों ने मुझे आगे तो देखा for Sunday worship, और मतलब कि आराधना लीड करने के लिए, but the behind thing nobody sees it. लेकिन जो पीछे जो मैंने काम किया किसी ने नहीं देखा। But let me tell you one thing. लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ God आपसे, sees it actually. लेकिन परमेश्वर देखता है। Hallelujah. God sees it actually. परमेश्वर देखता है। Every person in this world, everybody has a good small beginning actually. और जितने भी लोग इस संसार में, उनका छोटा या बड़ा एक शुरुआत है। Church, we have a talent. कलीसिया हमारे सबके पास एक टैलेंट है। This talent should not be kept for ourselves. This talent should be used for the glory of God. लेकिन ये जो टैलेंट केवल हमारे पास ही नहीं रखना, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। Matthew 5:16. और मत्ती का 5वां अध्याय उसका 16वां वचन says, "Let your light shine. लिखा है कि तेरी ज्योति चमकने दे, Let your light shine before others, लेकिन तेरी जो ज्योति है दूसरों के सामने चमकने दे, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। Whatever talent you and I we have today, आज जो कुछ भी हमारे पास टैलेंट है, let's use it for the glory of God. और आए प्रभु की महिमा के लिए इसकी इस्तेमाल करें। Let's use this talent for the glory of God. आए ये जो टैलेंट है जो हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Let your light so shine before man that they may be see your good work and glorify the Father who is in heaven. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। Use that what God has given to you freely, that you may give it freely to others, और जो that God will be glorified. जो परमेश्वर ने आपको मुफ्त में जो दिया है, आप भी मुफ्त में दूसरों को दीजिए, That God will glorify. और ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। Church, कलीसिया, this is an act of worship actually. और ये एक बातें हैं जो प्रभु की आराधना करने जैसे हैं। Worship is not only just coming, lifting up a hand. That is one of the way actually. जो आराधना है केवल हाथ उठाना है या गीत गाना, वो ही नहीं है, लेकिन ये एक है वो भी। To serving people, to serving each other. लेकिन सेवा करना एक दूसरों का, वो एक आराधना Whether है। you are a small, whether you are a big, whether you are rich, whether you are poor, whatever way, it's very, very important for you and me to serve each other. चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं या धनवान है या गरीब है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक दूसरों की सेवा करें। Verse 11. और 11वां वचन, 1 Peter chapter 4 verse 11. पहला पत्रस 4वां अध्याय उसका 11वां वचन। If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God gives, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगायुग उसी की है। आमीन। He's God supernaturally empower you and me. और परमेश्वर जो सुपरनैचुरल जो और हमें जो सामर्थ्य दिए जिसके हमारे और आपके अंदर, so that we can rely on his own strength, on his strength. ताकि हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य पर पूरी तरह से निर्भर हो सकें। Listen to me. When we serve people, we are not serving with our own strength. We should rely on the strength of God. लेकिन हम जब लोगों की सेवा करते हैं
हम अपने ही शक्ति पे नहीं लेकिन परमेश्वर के उस महान शक्ति पे हम भरोसा करके सेवा करते हैं। You know, when I was in a Bible school, जब मैं बाइबल स्कूल में था, we should teach that everybody should wash their own plates, and people should have the pastors who comes to teach, the students to take their plates also and wash their plates also. और ये काम ऐसा था कि हमें अपना खाना खाने के बाद हमारे बर्तन को धोना ही था, लेकिन जो पासबान जो आते थे वहां पे सिखाते थे उनके बर्तन को भी हमें धोना था। No, many of the culture, they say no, I will not do this thing. काफी सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि मैं ये तो काम नहीं करूंगा, क्योंकि this is झूठा plate. In my culture, this झूठा plate we are not supposed to clean of any other people. और उन्होंने कहा कि ये जो बर्तन है झूठा है तो मैं झूठा बर्तन में कभी साफ तो नहीं करूंगा। And they say we will not do it, pastor. और उन्होंने कहा कि पासवान मैं तो ये नहीं करूंगा। So for few days it was okay. और कुछ दिनों के लिए ये तो ठीक ही था, Because we can't take a stick and hit them and all this thing, we were okay with them. और क्योंकि हम डंडे लेके मार तो नहीं सकते थे, लेकिन ठीक था, चल रहा था काम। But as the days went on, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता as रहा we started teaching them, और जैसे हम सिखाना शुरू that किए Jesus came to serve, not to be served, और कहा कि यीशु मसीह सेवा करने के लिए नहीं आए, ऐसा नहीं है कि उनका सेवा कोई करे। people's hearts started changing. और फिर जो लोग के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। I believe in one thing. मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ, You and I, we can pray, we can talk to people, and sometimes they don't change. But when you and I talk to them about the word of God, it's God's words which bring changes into your life and my life. कई बार हम लोग बात तो करते हैं लेकिन उनके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन हम प्रभु के वचन के द्वारा जब बात करते हैं उनके अंदर, हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। We use our words to reflect Jesus. और हम जो पवित्र शास्त्र के हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि यीशु मसीह को उस बातों में दर्शाएं। Worship happens when we point not people to ourselves. Worship happens when we point people to God. और आराधना जो है ऐसे नहीं कि हम लोग जो लोगों को हमारी ओर केंद्रित करते हैं, लेकिन लोगों को हम यीशु मसीह की ओर केंद्रित करते हैं। People should not follow you and me. People should follow the Lord Jesus Christ. जो लोग हैं जो हमें हमारे पीछे न हो, लेकिन जो लोग हैं वो यीशु मसीह के पीछे हो But जाना very चाहिए। important, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण you बात है, and I, we reflect Jesus. लेकिन आप और हम जो है प्रभु यीशु मसीह की एक प्रतिमा And है, we are an example actually. और वो हम एक उदाहरण है। If you and I, we don't set that an example, अगर आप और हम लोग कोई उदाहरण नहीं रखते and we say we are the follower of Jesus, और हमने कहा कि हम प्रभु के चेले हैं, it's wrong. फिर वो गलत है। The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, let him do it as to of the ability which God gives him. Let him do it as of the ability which God gives. तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। Yeah, the strength of God into you and me. जो परमेश्वर ने जो शक्ति दी है उससे उसके द्वारा हम कर सकते हैं। So worship is serving is an act of worship. और जो सेवा है वो एक आराधना का एक चिन्ह है। वो If anyone speaks, he should do it to you speaking in the word of God. और जो भी करें, जो बोलता है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सेवा करें। Hallelujah. Hallelujah. This is one of the way of worshiping God. और ये एक वे है, एक मार्ग है प्रभु की आराधना करने का। There are 5 ways that you can worship God. और मैंने जैसे कहा कि 5 तरीके हैं प्रभु की आराधना करने का। Serving is one of the way. और जो सेवा है, एक दूसरे की सेवा, वो पहला I है। will take the second point and I will complete it. और मैं दूसरा लेके मैं समाप्त करूंगा। The second one is जो दूसरी बात है, sharing your testimony to people. और अपना जो गवाही है दूसरों के सामने बताना। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Sharing your testimony to people. और अपना जो गवाही है दूसरों के बीच में रखना बहुत जरूरी है। Your testimony makes other people the disciple of the Lord Jesus Christ. और क्योंकि जो आपकी जो गवाही है उन लोगों को प्रभु के चेले बनाने के लिए मदद करते हैं। Church, praise God what Jesus did 2000 plus years back on the cross of Calvary. कलीसिया धन्यवाद करते कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो कलवरी क्रूस में किया था। But the same thing what he did, he into your life. और जो यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में किया है, your life becomes a testimony for other people. क्योंकि आपका जो जीवन है दूसरों के लिए गवाही का कारण बन जाता So है। it's very important
important people, observers, what you and I we do actually. और देखा जाए तो लोग बहुत गौर से देखते हैं कि आप और हम करते क्या हैं। You know, Jesus said in the book of Luke chapter 8 verse 39. और लूका का जो किताब का 8वां अध्याय उसका 39 वर्स में लिखा है, Jesus said it like this. यीशु मसीह ने ऐसे कहा Go and tell to the people what the Lord has done into your life. और कहा कि जाके लोगों को बता कि प्रभु ने क्या तुम्हारे जीवन में He किया said, है, return to your own house and show how great thing God has done unto you. कि अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए हैं। Church, it is very, very important in today's scenario that we share our testimony to the people. कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आज के दौर में हम जो प्रभु की जो महिमा के लिए अपने गवाही को रखते हैं, It's very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Your testimony and my testimony can bring somebody to the Lord. और आपकी गवाही और मेरी गवाही जो किसी को प्रभु में लेके आ सकते हैं। Your testimony and my testimony can change somebody's life. आपकी गवाही और मेरी गवाही किसी के जीवन को बदल सकता है। This is one of the way of act of worship towards the Lord. और ये भी एक कारण है प्रभु की आराधना करने जैसे। You know, Jesus said, go and tell to the house, return to your house and tell them the great things. He said the great things the Lord has done into और your कहा life. कि तू अपने घर लौट जा और बता देना कि परमेश्वर ने कितने बड़े महान कार्य किए हैं। Do you believe that God has done great things into your life and क्या my life? विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपके जीवन में महान कार्य किए हैं? Yes. God has done great things. परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं। Hallelujah. The biggest, greatest thing, you know what God has done in your life and my life? आपको पता है कि सबसे महान बड़ा काम क्या किया आपके और मेरे जीवन में? Salvation. वो है उद्धार। Salvation. वो है उद्धार। Wow. Just imagine if you and I would not have salvation, where we could have been today. आप सोचिए अगर आपका और मुझे अगर उद्धार नहीं मिला होता हम कहां होते थे। But praise God that God saved you and me. बट परमेश्वर को सारी महिमा कि उन्होंने हमें बचा लिया। If you and I are a follower of Jesus, अगर आप और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने वाले we are लोग हैं, supposed to share to other people that what Jesus did into my life. तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के सामने बात रखें कि यीशु मसीह ने क्या किया। Matthew chapter 28 verse 19, everybody knows. Jesus instructs you and me to go and make disciples. और मत्ती का 28 अध्याय उसका 19 में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जग के कोने में जाओ और लोगों को तुम चेले बनाओ। We are supposed to go and share. और हमें आगे जाके प्रभु के बारे में बताना है। But listen to me, church. कल इसे ध्यान से We सुनिए। need to be very, very careful in today's scenario. Whom do we share the gospel actually? और मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज के इस दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम किसके साथ किसके पास प्रभु के बारे में बातों को रखते हैं। You know, in the Old Testament, it was Isaiah, in the book of Isaiah chapter 6, where God asked, who shall go for me? और ईसाया का जो किताब है उसमें लिखा है 6वां अध्याय में लिखा है कि किसको मैं भेजूं मैं, Who shall go for me? कौन मेरे लिए जाएगा। Isaiah said, it's me, God. और ईसाया ने कहा कि मैं जाऊंगा। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में Jesus is not asking. यीशु मसीह किसी से पूछ नहीं रहे, He is commanding actually you and me. लेकिन वो आज्ञा दे रहे हैं कि आपको और He's मुझे, telling actually you and me और कहते हैं कि आप और हम, that you and I shall go. कि आप We और have to go. हमें जाना ही है। Hallelujah. We have to share what God did into our life. हमें जाना और बोलना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या We किया। have to tell people that Jesus lives in me and He is the only God. और हमें ये बताना लोगों को कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ही परमेश्वर हैं। This is an act of worship towards God actually. और ये एक कारण है प्रभु की हम जैसे सेवा या उसकी आराधना करने जैसे। So just church this morning, और इस सुबह के वक्त I want to leave you with these two things. और मैं इस दो बातों के आपके पास रख के मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। There are other three things which I will share later on. और शायद मैं जो 3 बातों को मैं आने वाले दिनों में आपके सामने रखूंगा, But very important. लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात Serving God, कि प्रभु की सेवा करना, serving people, लोगों की सेवा करना, sharing our testimony. हमारी जो गवाही को रखना लोगों के बीच Serving में, God, परमेश्वर की सेवा करना serving each other, और एक दूसरे की सेवा करना, loving each other, एक दूसरे से प्रेम करना sharing our testimony to other people. और हमारी जो गवाही एक दूसरे के साथ बांटना। Let's all stand up in the presence आइए of हम God. सब खड़े हो जाएं। We should not keep the good news to ourselves. और ये सुसमाचार केवल हमें अपने पास ही नहीं रखना We है are here to give it to others. और हमें दूसरों के पास हमें देना है। Thank you, Jesus. Let every eyes be closed. आज सबकी आंखें बंद कर दें हम।
Let every eyes be closed. आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। God, we want to worship you, Jesus, in spirit and in truth. परमेश्वर, हम आपकी आराधना सच्चाई से और आत्मा भरकर करना चाहते हैं। Lord, we are here to please you. प्रभु, हम यहाँ पे आपको प्रसन्न करने के लिए आए हैं। We are here to serve you and to serve your people, O God. प्रभु, हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं प्रभु, और आपके लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। In spite of any culture, in spite of any language, in spite of any color, in spite of anything, O God, we want to serve your people, O God. हालांकि कोई सभ्यता अलग हो सकता है, रंग रूप अलग हो सकता है, हमारी भाषाएं अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु हम यहाँ पे तेरी सेवा के लिए आए हैं। The reason is that because you came to serve us, O God. प्रभु, क्योंकि तू इसीलिए आया ताकि तू हमारी सेवा कर So सके। Lord, we want to serve your people, O God. और इसीलिए प्रभु हम लोगों की सेवा करना Lord, चाहते this हैं। is which is an act of our worship towards you this और morning, प्रभु O ये God. चिन्ह है कि जो हम प्रभु की हम आराधना कर सकें। Church, this morning, कलीसिया सुबह के वक्त you know, I want to tell you, let's tell God, God, I really want to serve you, O God. और कहें कि प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, In whatever way, God, you want to use me, I am ready, O God. और जैसे भी प्रभु आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ। I am ready, O God. हम तैयार हैं प्रभु। Lord, use us, Lord, to share our testimony, O God. प्रभु मेरे इस्तेमाल कर प्रभु, मेरे गवाहियों को तू तैयार So करने के that, लिए, Lord, we will see your kingdom expanding, O God. ताकि प्रभु हम देख सके प्रभु तेरा राज्य प्रभु बढ़ते रहे। So we can see your kingdom expanding, O God. प्रभु ताकि हम देख सके प्रभु तेरा राज्य का विस्तार, And more people coming to the Lord, O God. और काफी लोग प्रभु तेरे इस राज्य में आ रहे हैं। Lord, we speak confusion in the enemy's camp, O God. और प्रभु हम जो दुश्मनों के जो उस तंबू में प्रभु कंफ्यूजन को हम घोषणा करते हैं। We speak confusion in the name of Jesus. प्रभु हम इस कंफ्यूजन को यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं दुश्मनों के में, And we say, O God, और हम कहते हैं your kingdom shall be expanded, O God. कि प्रभु तेरा जो राज्य है वो बढ़ता जाए, Your kingdom shall be expanded in Kharghar, O God. और प्रभु तेरा जो राज्य है वो उस खारगर में बढ़ते रहे Your प्रभु। kingdom shall be expanded in New Mumbai, O God. प्रभु तेरा जो राज्य है प्रभु इस नवी मुंबई में बढ़ते रहे। We pray, O God. हम प्रार्थना करते हैं Let your kingdom come. Let your will be done, O God, in Kharghar, in New Mumbai, O God. प्रभु तेरी इच्छा प्रभु खारगर में नवी मुंबई में होने दे प्रभु। We want to see more and more souls for your kingdom, O God. प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु और भी प्रभु जो सोल से आत्माएं प्रभु तेरे We राज्य में, speak that heaven should be populated by you, by people of yours, O God. प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो स्वर्ग है प्रभु आपके लोगों से भर जाए। We love you, Jesus, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु with all our hearts, पूरे संपूर्ण हृदय से, with all our minds, with all our strength, O God. प्रभु सारे मन से, पूरी शक्ति से प्रभु। The reason we live on this earth is to serve you and you alone, O हम God. यहाँ पे जी रहे हैं प्रभु केवल आपकी सेवा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए We प्रभु। thank you, Master. धन्यवाद मेरे गुरु, Give you all glory, honor, and praise. सारी महिमा गौरव आपको देते In हैं। Jesus' most holy name we pray and we ask. यीशु मसीह के मूल्यवान उस पवित्र नाम से प्रार्थना All करते God हैं। people say Amen. और सभी लोगों ने कहा Amen. Let's give a big clap to Jesus. Come on, church. एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए।